very good afternoon to all of you. I, Dr. Shobna Poddar, Dean of Om Sterling Global University, on behalf of our worthy Chancellor, Dr. Puneet Goyal ji, and Pro-Chancellor, Dr. Poonam Goyal ji, and our Honorable Vice-Chancellor, Professor N.P. Kaushik ji, and our PVC, Dr. Ajay Poddar ji, on behalf of our Om Sterling Global officials, I welcome all the audiences, my colleagues, my faculty members, my students, and my eminent speakers. Today we are having on board Mr. Dayamurthy, Mr. Vikas Khosla, Mr. Prabhanshu Mittal, and Mr. Nikhil from ISDC. So we are glad to tell you that Om Sterling Global University has collaborated with International Skill Development Corporation for providing global platform to the students of OSG. Through ISDC, University has signed MOU with two global qualifications, that is ACCA, Association of Chartered Certified Accountancy, and United States Certified Management Accountancy, that is USCM, for our undergraduate courses BCom and BBA. So I welcome all the eminent personalities from the on board, and I would like to welcome Mr. Dayamurthy. He is a head institutional partnership from ISDC. Mr. Vikas Khosla, he is from zonal head ISDC. Mr. Prabhanshu Mittal, he is a senior business relationship manager, and Mr. Nikhil, he is from ISDC as a regional manager. So I welcome all of you, and now I would like to invite Mr. Nikhil for the same. So, very good afternoon, Dr. Shobna ma'am. Thank you so much for the warm introduction regarding our association with Om Sterling Global University. We are extremely proud to be associated with the university, and we are looking forward for successful batches or students to be earning those professional skill development, being skilled professionally, so that they are employable in today's employment scenario, and they are employable in the kind of jobs they are aspiring to join. So basically, we are helping the students to realize their dreams through these professional skill development certifications. So now I would just like to share my screen. I supposed to request control here. I need to share the screen. So very good afternoon to all the students who would be present here. So I am Vikas Khosla, the zonal head from International Skill Development Corporation, who is here today, and along with my colleague, Mr. Nikhil Sharma. And we have Mr. Prabhanshu Mittal, who's from ACCA. So students, I would like to, tell you that, that you all are in one of the best reputed universities of India, which is Om Sterling Global University. You are in the capital city, which is Hisar in Haryana. So आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में हैं. आप 3 साल अब यहाँ ग्रेजुएशन करेंगे, बीकॉम करेंगे. सो बीकॉम के बाद क्या, मतलब बीकॉम के बाद 2-3 ऑप्शंस होती हैं. या तो स्टूडेंट अपना वन गोज फॉर वंस फैमिली बिजनेस. तो फैमिली बिजनेस ने जाने से पहले आइडियली हम लोग यही सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको कुछ हैंड्स ऑन एक्सपोजर, कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सम कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू कैन लर्न द बेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इम्प्लीमेंट उसको आप अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा सेकंड चीज होती है कि स्टूडेंट कहते हैं चलो लेट मी सी अगर कोई जॉब है, इफ देयर इज एनी जॉब जो मुझे मिल जाए जिससे मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाए. पर क्या जॉब्स एक्चुअली हैं? जॉब्स एक्चुअली अगर होते भी हैं तो दे आर बेसिकली इन द बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट्स या नॉलेज प्रोसेसिंग यूनिट्स, जिनको हम बीपीओ केपीओ अब्रीवेटेड फॉर्म में बोलते हैं. तो वहां पे जॉब्स जो स्टूडेंट जनरली जो होते हैं ना, वो मे बी 1.5 to 2.5 lakhs एट द मैक्स पर एनम का सीटीसी पैकेज होता है. तो अगर आपको ड्रीम बिग करना है,
आपको अबाउट देयर आर 40,000 स्टूडेंट्स जो आपके साथ ग्रेजुएट करने वाले हैं, और करीब इस वक्त 900 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं जो इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, एंड देयर अबाउट 400 प्लस कॉलेजेस जहाँ पे जहाँ से बच्चे निकल के आते हैं। तो आपके साथ करीब 40,000 स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ ग्रेजुएट करेंगे। तो आपको अपने उन स्टूडेंट्स इतने सारे स्टूडेंट्स में आपको स्टैंड आउट करना है। आपको ऐसे स्टैंड आउट करना है कि आपको आप अपनी ड्रीम्स रियलाइज कर पाओ। तो मैंने जैसे आपको बताया, फैमिली बिजनेस एक ऑप्शन है, जॉब्स जो है खास कोई ऐसी जॉब्स है नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन है, स्टूडेंट कहता है चलो लेट मी डू एन एमबीए। पर एमबीए करने के बाद भी स्टूडेंट्स सिचुएशन वैसा ही है कि जॉब्स जो मिलते हैं बेसिकली एंट्री लेवल जॉब्स मिलते हैं। So you mean basically for like entry fresher profiles in organizations। तो आप जो ड्रीम करते हैं बीकॉम करने के बाद कि भाई नाउ मैं ग्रेजुएट बन गया हूं तो अब मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या मुझे अगर मैं एमबीए कर लूं तो शायद मेरे ड्रीम्स रियलाइज हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। क्योंकि कुछ ऐसी प्रोफेशंस स्किल्स होती हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज होती है जो आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही बताती है, जो आपको सिखाती है। तो अगर वो आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल स्किल्स या प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे बोलते हैं, आप अपने ग्रेजुएशन में ही अगर आप कर लेंगे, अगर आप अपने ग्रेजुएशन बीकॉम के साथ ही कर लेंगे, तो आपका जो ड्रीम्स हैं वो रियलाइज होने के ग्रेजुएशन के बाद ही हो जाएगा। तो अब हम आपसे शेयर करने वाले हैं। Am I allowed to share here? Yes, yes. Thank you. So first, thanks Vikas. First of all, at the outset, also I would like to say thanks to the faculties and staff of Om Sterling Global University, my colleagues from International Skills Development Corporation, they are Vikas, Nikhil, and most importantly, to the students for having me to interact with you all to talk about ACCA, a global body for professional accountants. So students, like Vikas was talking about the difference between academic qualification and the professional qualification, the importance of having a professional qualification in your career, and how ACCA is actually going to help you to build around your career in the corporate field. I'm also going to touch upon a bit about entrepreneurship. I believe that many of you would like to start your own business. Maybe after joining some corporate, having some experience, maybe doing some experimentation around during the jobs. But later on, if you want to start your own business, so if you want to become an entrepreneur, what do you need to do the business? You need capital management. You need human resources management, inventory control. You need to demonstrate the leadership qualities, operational management, return on investment, overall business management, so on and so forth. So ये सारी skills आपको अपना business शुरू करने के लिए चाहिए होती हैं, ताकि आप अपनी एक कोई अगर आप कंपनी सेटअप कर रहे हैं, चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर हो या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, अलग अलग चीजों की जरूर जरूरत पड़ती है, बट दीज आर सम ऑफ द कोर स्किल्स व्हिच यू रिक्वायर इफ यू रियली वांट टू स्टार्ट with your own business and become a successful entrepreneur in the long run. Any professional qualification, and especially in the field of accounting and finance like ACCA will help you to understand the nuts and bolts of the business. Now, what does it mean? Nut and bolt का मतलब ये हुआ, जब आप कोई भी say for example you are driving a car. Now your car is being driven on the chassis. It is looking for some engine. Of course, then there is a cabin experience, interior, etc. Safety and management, tires and nuts and bolts. So these are the core of any car. Similarly, the skills which I have talked about are the core of any business. And finance and accounting actually helps you to understand. ACCA जब हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और जब विकास जी बात कर रहे थे कि आप टैक्सेशन के पेपर पढ़ते हैं, आप लॉस के पेपर पढ़ते हैं, आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं,
आप उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो आप उसके बाद जब आप एक्सटेंडेड पेपर पढ़ेंगे बाद में कभी, तो उसमें स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर आएगा, स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा। ये सारी चीजें जो है वो एक कोर है बिजनेस का। You can hire always a professional accountant to do these jobs for you. But what is more important that you also have to be knowing about these things if you really want to become a successful entrepreneur, if you want to take your business to the next level. So आपको खुद को भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैसे लाना है, मुझे अपनी फैक्ट्री को कैसे रन करना है या अपने बिजनेस को कैसे रन करना है, मुझे किस तरीके से अपनी ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करना है, क्या उनको कंट्रोल में रखना है या उनको कितनी फ्रीडम देनी है, किस तरीके से अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे प्रोडक्ट की क्या है। ये सारी चीजें जो है ये आपको ACCA क्वालिफिकेशन के अंदर काफी हद तक कवर करी जाती हैं। लीगल रेगुलेशंस क्या हैं, लोकल टैक्स लॉज क्या हैं, ये सारी चीजें आपको ACCA के अंदर कहीं ना कहीं कवर करी जाती हैं। नाउ अबाउट ACCA, ACCA stands for Association of Chartered Certified Accountant. जैसे विकास जी कह रहे थे that it's an 116 years young qualification, and the reason Vikas was saying that it is a young qualification is because we continue to evolve and we have been evolving for the last 116 years. So जो contemporary business trends है, जो contemporary requirements है businesses की, उसके हिसाब से हम अपनी requirements को change करते रहते हैं, and we see what the fraternity 5 years, 10 years down the line is looking for, what are the new trends which are coming up in businesses, and we incorporate them into the qualification. This is the next paragraph which I'm going to read out for you is been asserted by the first president of ACCA way back in 1904, and is still very relevant. We aim to offer business relevant first choice qualification to the people of application, ability and ambition around the world who seek a rewarding career in accountancy, finance and management. Now, what does it mean? Business relevant is something which I tried to explain it to you. मैंने काफी हद तक explain भी कर दिया. First choice qualification for the people of application. Now, people of application is a very important term here. We not only teach you these businesses or how these concepts are working, but also we make sure that you are able to apply these concepts in your day-to-day work. तो एक तो बात हो गई पढ़ाने की, पर एक बात ये भी हो गई कि हम आपको उस तरीके से इवैल्यूएट करते हैं ताकि आप ये सारी चीजों को अपने डे टू डे जब भी आप काम करें, चाहे आप बिजनेस करें या आप कहीं नौकरी करें, आप उसको अप्लाई कर पाए विद फुल ऑफ योर एबिलिटी टू द लेवल ऑफ योर एम्बिशन and around the world. Vikas ji was covering that ACCA's students are present in almost 90% of the globe, which is equal to 181 countries. So that is what our ambition has always been, that we wanted to help the people around the world, and that's why we have become a global professional qualification. Just English is the global language. IFRS is the global language for the finance and accounting. International Financial Reporting Standards जिसको बोलते हैं. ACCA is the first body in the world to incorporate IFRS way back in 1996. जबकि पहली बार किन्हीं कंट्रीज ने IFRS को इनकॉर्पोरेट करा था अपने यहाँ के लॉज में 2002 के अंदर. हमने 6 साल पहले उसको पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि जब कंट्रीज उसको इम्प्लीमेंट करें, जब वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली उस वक्त लोगों को पता नहीं होगा उस चीज के बारे में और उस तरह के लोगों की शॉर्टेज पड़ जाएगी. ACC ने क्या करा, उसको 5-6 साल पहले पढ़ाना शुरू कर दिया ताकि पहली चीज कंट्रीज की इकोनॉमी इंपैक्ट ना हो, ऑलरेडी उनको प्रोफेशनल्स रेडी मिले और प्रोफेशनल्स को ये फायदा हो गया बिकॉज देयर इज ऑलरेडी अ शॉर्टेज ऑफ द टैलेंट इन दैट पर्टिकुलर डोमेन. दोस प्रोफेशनल्स वर रिकॉग्नाइज्ड एंड व्हेन यू आर रिकॉग्नाइज्ड यू आर रिवॉर्डेड. आपको सैलरी ज्यादा अच्छी मिलती है, आपको पोजीशन ज्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि जो चीज जितनी कम है उसकी कीमत उतनी ज्यादा है. So that's how ACCA actually works around the world, especially in the field of accountancy, finance, and management. So this is not a core finance qualification, but this is a mix of accountancy, finance, and management too. अगर आप देखें
12% बच्चे जो हैं ACCA के वो मिनासा में है, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ एशिया। 15% अफ्रीका में है, 27% एशिया पैसिफिक में है और 46% आर इन यूरोप एंड अमेरिकास। Close to 1 million students and members worldwide, 2,67,000 members, 6,27,000 स्टूडेंट 181 कंट्रीज के अंदर। डेटा थोड़ा सा मैं आपको अपडेटेड बता देता हूँ। 110 ऑफिसेस 60 कंट्रीज के अंदर, 7,400 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, 500 से ज्यादा एग्जाम सेंटर 150 कंट्रीज के अंदर। ये है ACCA आज की डेट में। ट्रूली अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। ना अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, यहाँ पे विकास जी भी बात कर रहे थे, मैं भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। These are the corporates which have applied to ACCA to become an approved employer because they feel that ACCA is a qualification which can help their businesses by providing them ready to work talent। मतलब क्या हुआ इसका कि ACCA क्वालिफिकेशंस को वो रिकॉग्नाइज करते हैं। उनको लगता है कि जब ACCA प्रोफेशनल्स को वो हायर करेंगे तो वो उनके काम को, उनके बिजनेसेस को हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इसलिए वो ACCA के पास आते हैं यहाँ के बच्चों को, मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को पिकअप करने के लिए कॉर्पोरेट्स में। ACCA इंडिया के अंदर क्या कर रहा है? अब ग्लोबल की तो बात हो गई, इंडिया के अंदर क्या कर रहा है? 4 ऑफिसेज है हमारे, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई। आई एम बेस्ड इन दिल्ली ऑफिस। उसके अलावा जो है कोची, हैदराबाद, कलकत्ता में हमारी टीम्स है। इन चारों लोकेशंस के अलावा ACCA का प्रोग्राम जो है 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में आज की डेट में रन कर रहा है और 80 से ज्यादा इंडियन कॉर्पोरेट जैसे HCL हो गई, इंफोसिस हो गई, सैन मार्टिन हो गई, ITC हो गई, ये सारी ऑलरेडी ACCA के साथ काम कर रही हैं। क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर विकास जी ऑलरेडी बता चुके हैं। सो बहुत छोटा सा, टोटल 13 पेपर है, आपके सिलेबस में 9 पेपर है। तो ग्रे वाला और ऑरेंज वाला, अभी ब्लू वाला भूल जाइए। ग्रे वाले के अंदर 3 पेपर है, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अप्लाइड स्किल्स के अंदर है लॉ, कॉस्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग का पेपर हो गया, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन 9 पेपर में से आपको सिर्फ 3 पेपर देने हैं। 6 पेपर आपके एग्जेम्प्टेड है, तो ग्रे वाले जो है वो 3 नहीं देने और ऑरेंज वाले के अंदर टैक्सेशन तक आपको नहीं देना। आपको सिर्फ ये 3 पेपर देने हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट एंड एश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब आप ये तीनों पेपर दे देंगे तो आपको ACCA की तरफ से एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस मिलेगा। जब आप इन तीनों पेपर्स के साथ एक एथिक्स का मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे जो कि ऑनलाइन है, तो आप BSc कर सकते हैं फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी, BSc in Applied Accounting and Finance. Oxford Brookes University is rated among the top 10 in finance and accounting by Sunday Times in the UK. So आपको एक फॉरेन की डिग्री भी मिल गई, एक इंडियन डिग्री भी मिल गई ओम स्टर्लिंग से, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ भी आपने आगे कदम बढ़ा दिया ACCA की तरफ, और आपके पास एडवांस डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन IFRS भी हो गया। तो आप एक कंप्लीट पैकेज बन गए। अब उसके बाद आप चाहे अपना बिजनेस करें या आप किसी जगह नौकरी करें या पहले नौकरी करके फिर बिजनेस करना चाहें, वो आपकी चॉइस है। बट आपको एक तरीके से अगले 3 साल के अंदर हम लोगों ने एक पैकेज बना दिया। ACCA क्यों करना चाहिए? पहली चीज कवर करी मैंने, IFRS जैसे नाम लेकर के। ACCA टीचेस ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो जो भी कंटेम्पररी आज की डेट में सबसे ज्यादा रेलेवेंट है और फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, आज की डेट में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, RPI की बात करते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA की बात करते हैं, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, ये सारी चीजें ACCA क्वालिफिकेशन के अंदर पढ़ाई जाती हैं। ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज, इस चीज को भी मैं 5 मिनट बाद कवर करूंगा। बिजनेस रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू वेरी वेल, एंड वी आर ब्रिलियंटली फ्लेक्सिबल। मतलब क्या है इसका? सबसे पहले सिलेबस हमारा डायनामिक है, ऐसा नहीं कि एक सिलेबस बना दिया उसको 10 साल तक पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर साल सिलेबस चेंज होता है और इसकी वजह है कि हमारा सिलेबस जो है वो कॉर्पोरेट से फीडबैक लेकर के बनता है, तो उसमें वही चीजें हैं जो कि कंपनीज को चाहिए, फालतू चीजें नहीं है उसके अंदर जो कि रिलेवेंट है। प्रैक्टिकल एंड केस स्टडी बेसिस इवैल्यूएशन होता है
और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी विकास जी ने जैसे कवर करी, इसमें ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है जैसे अपना इंडियन क्वालिफिकेशंस या कुछ एक क्वालिफिकेशंस के अंदर है। देयर इज नो ग्रुपिंग सिस्टम। इसका मतलब है कि आप चाहे तो एक बार में एक एग्जाम दें, एक बार में 2 एग्जाम दें, वो आपकी इच्छा है। 4 एग्जाम सेशंस हैं आखिरी मंथ हर एक क्वार्टर का, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। एंड एग्जाम्स आप चाहें तो किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बाद में पहले आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाद में आता है। आप पहले चाहे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दे दीजिए, एफआर बाद में दे दीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको। मल्टीपल क्वालिफिकेशंस, एडवांस डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस, ऑप्शनल बीएससी ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से, और जब आप एसीसी के पूरा 13 पेपर कंप्लीट कर लेंगे तो आप मास्टर्स भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। आपको लगता है कि आपको एमबीए करना चाहिए और बाहर से करना चाहिए, तो बिल्कुल वो भी ऑप्शन है हमारे पास, यूनिवर्सिटी ऑफ आयरलैंड का एंड ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी का एमबीए। आप एसीसी क्वालिफिकेशन करने के बाद आप वहां से भी एमबीए कर सकते हैं। फास्टर प्रोग्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एम्बेडेड विद बीकॉम एट ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के अंदर आप ऑलरेडी एसीसीए का प्रोग्राम पढ़ेंगे बीकॉम में। वो पेपर्स जो है एसीसीए के ऑलरेडी आपके क्यूरिकुलम के अंदर एम्बेड किए जा चुके हैं। तो अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि अगर आप अलग से मान लीजिए आप कोई और क्वालिफिकेशन करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की भी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है और उस क्वालिफिकेशन को अलग से पढ़ना पड़ता। तो दो चीजें एक साथ कर रहे होते। यहाँ पे आप 2 चीजें एक साथ कर रहे हैं, बट चूंकि दोनों का सिलेबस मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, तो आपको 2 बार पढ़ाई नहीं करनी पड़ रही। आप एक ही चीज पढ़ रहे हैं और 2 अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी एक साथ हो रही हैं। तो आपको मेहनत थोड़ी सी कम लग रही है, पर आपके रिजल्ट जो है वो ज्यादा आ रहे हैं। जब आप बीकॉम हो चुके होंगे 3 साल के अंदर, तो आप उस वक्त एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को आधे से ज्यादा कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे आपके जीवन के कम से कम 4 से 5 साल बच रहे हैं। बताता हूं कैसे। जब आप मान लीजिए कोई भी क्वालिफिकेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सीए करा, सीए करने के लिए 4 से 5 साल का समय मोटा मोटी चाहिए होता है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। अदरवाइज कुछ बच्चों को उनसे ज्यादा भी समय चाहिए होता है। तो यूजुअली जो है जब आप बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद आपको 3 से 4 साल और चाहिए होते हैं इन ऑर्डर टू फिनिश ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। With ACCA, our idea is that you finish off ACCA qualification by the time you are graduate or maximum within 1 years of your graduation. तो आपका 3 से 4 साल आपका वहां बच गया, और वो मैं अच्छे स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ। अगर एवरेज या बिलो एवरेज में जाएंगे तो वो समय और बढ़ जाएगा। 3 से 4 साल का समय आपका बच गया। 3 से 4 साल में क्या है, अगर आप अपना बिजनेस डाल रहे हैं तो बिजनेस आपका सेटअप हो गया है। 2 साल 3 साल का आपका ब्रेक इवन में आने में लगता है और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया, होना शुरू हो गया। अगर आप नौकरी में कर रहे हैं 3 साल के अंदर आप आराम से एक प्रमोशन उठा सकते हैं। और जो बच्चे आपके बाद जिन्होंने सीए करा है या आपके बाद कुछ और करा है उन्होंने, वो आपके अंडर में आके काम करेंगे। आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, आपने 3 साल के अंदर एक गाड़ी ले ली है, और शायद अगर आपकी सैलरी और ज्यादा अच्छी हुई तो आप शायद अपना घर बनाने की राह पे चल पड़ेंगे। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, सेविंग 3 years इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड। और एसीसीए के पास रेट्स कहीं ज्यादा बेहतर हैं दूसरी क्वालिफिकेशंस के मुकाबले। सो अगर मैं बात करूं, अप्लाइड नॉलेज का पास रेट जो है करीब 80% के आसपास आता है। अप्लाइड स्किल्स में चूंकि हर एक पेपर अलग अलग होता है, ग्रुपिंग नहीं है, तो हमारे यहाँ पेपर्स टू पेपर वेरी करता है। बट अगर आप इन तीनों पेपर की बात करें, एफआर, ऑडिट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि आपको यही 3 पेपर देने हैं, तो इनका जो पास रेट है वो करीब करीब 40 से 50% के आसपास जाता है ना। मैंने एम्बेडिंग की बात करी थी, ये चीज समझिए, मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि अकाउंटेंट बिजनेस से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक आपके सिलेबस में बीकॉम में ये 9 पेपर पूरे पूरे हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको अलग से देना जरूर है, बट ऑलरेडी आप अपने बीकॉम में पढ़ चुके हैं। बट एक फर्क होता है एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में और एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन में।
उस फर्क को मिटाने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए यहाँ पे बड़ा अहम रोल अदा करती है ISDC, इंटरनेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि आपको हर मोड़ पर अगले 3 साल के लिए हर समय आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट देंगी। वो ऑर्गेनाइजेशन ISDC में जो उसके जोनल हेड है विकास जी, अभी आपने उनको सुना। विकास जी और उनकी टीम जो है वो आपको एक फुल फ्लेजेड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में इंडिया के अंदर ACCA की जितनी यूनिवर्सिटीज में रिलेशनशिप है, मैक्सिमम में 95% से ज्यादा मैं कहूंगा ISDC उसको रन करते हैं। तो उनका एक यूनिवर्सिटी रिलेशनशिप्स को मैनेज करने का एक्सपर्टीज है, एंड दैट्स व्हाई दे आर देयर। तो डाउन साउथ में अगर आप चले जाएं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बात कर लें, आप देखेंगे ISDC वहां पे प्रेजेंट है। आप नॉर्थ इंडिया में बात करें, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में बात करें, चाहे वो दिल्ली में हो या चंडीगढ़ में हो, जयपुर में हो, लखनऊ में हो, कहीं पे भी हो, आप देखेंगे ISDC ही वहां पे है। तो उनका अपना एक एक्सपर्टीज है टू सपोर्ट द स्टूडेंट्स स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, और वो कई सालों से इस काम को कर रहे हैं। तो मतलब दे आर वेरी प्रोफेशनल्स अराउंड दैट। सबसे जरूरी चीज, भाई कर तो लिया, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कितने की मिलेगी, कहां पे मिलेगी, किस तरह की मिलेगी, employability, that's the most important question any student should have in the mind, that after completing the qualification, what about my career, where I can build my career, what kind of opportunities I can look at, where I can look at, what probably are the career prospects or the growth prospect I can expect after having completed a particular qualification. ACCA का अपना खुद का naukri.com है, jobs.accaglobal.com, जिसको हम लोग बोलते हैं। This is the career portal ACCA has. Now, अभी आप देख रहे होंगे मैं इस वक्त अपने उस करियर पोर्टल पे लाइव हूं, तो मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रहा, आई एम देयर ऑनलाइन। सर्च करते हैं। आज की डेट में 32,500 नौकरियां ACCA प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। 32,500 जॉब पोस्टिंग्स हैं ये। अब मैं बात करता हूं वर्ल्ड वाइड तो छोड़िए, अपन बात करते हैं इंडिया में, क्योंकि अपन बेस्ड है इन इंडिया। सो ओके, लेट्स सर्च नाउ इन इंडिया। अगर मैं देखूं तो 950 से ज्यादा पोस्टिंग्स ACCA प्रोफेशनल्स के लिए इंडिया के अंदर आज की डेट में है। 950 पोस्टिंग है, बट विद इन अ पोस्टिंग कई नौकरियां ऐसी हैं जहां पे एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो 950 पोस्टिंग है, बट अगर नंबर ऑफ जॉब्स की बात करें तो कम से कम 2000 से ज्यादा है। अब कहां पे है? Amazon, everybody does shopping on the Amazon, largest e-commerce company in the world, Jeff Bezos, right? कर्नाटका में सीनियर अकाउंटिंग एनालिस्ट की Amazon में पोजीशन अवेलेबल है। सिटी बैंक आपको, देन एक्सेंचर अप्रूव्ड एम्प्लॉयर भी है इंडिया के अंदर। देन अगेन अगर आप देखें Amazon अकाउंट्स रिसीवेबल में बिजनेस एनालिस्ट की है हैदराबाद के अंदर। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाने का शौक है तो देन गोल्डमैन इज देयर, इंटरनल ऑडिट की पोजीशन है इन बैंगलोर। देन अगेन Amazon, अगेन एक्सेंचर, सिटी, और ये सारी पोस्टिंग्स आप देखिए वन डे एगो की है, एक दिन पहले ही ये पोस्टिंग्स कल ही करी गई हैं। तो हम जहां बात करते हैं कि कोरोना काल है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों की तनख्वाहें कम हो रही हैं, नौकरियां जा रही हैं, उसके बावजूद आप देखिए 1500 से 2000 पोजीशंस ACCA के लिए विद इन इंडिया आज की डेट में अवेलेबल हैं, दैट टू इन दिस मल्टीनेशनल ड्रीम कंपनीज। आई मीन दीज आर द ड्रीम कंपनीज फॉर द फाइनेंशियल पीपल। बिग फोर्स, अर्नस्ट एंड यंग कंसल्टेंट, ये पोजीशन जो है वो 60 लोगों के लिए है बॉम्बे में जहाँ पे अवेलेबल है। Then again city will continue to move, will continue to see कि भाई हाँ आती जा रही है। सीनियर कंसल्टेंट की मुंबई में अगेन 60-70 लोगों की कम से कम है, पोस्टिंग एक है बट 60 से 70 लोगों की है। 2 दिन पहले परसों की पोस्टिंग है ये। ड्यूपॉन्ट इज देयर, स्टेट स्ट्रीट इज देयर। कंसल्टिंग में फिर से जाने का शौक है तो मॉर्गन स्टैनले में नौकरी है। अगेन ड्यूपॉन्ट, स्टेट स्ट्रीट, यू कैन कंटिन्यू टू सी सारी पोस्टिंग्स।
BNY Mellon, internal rep, accounting, lead analyst, accounting, BNY Mellon. Again, Morgan Stanley, you can see. DuPont, State Street. So अब आप देखिए कि किस तरीके से मतलब ACCA प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग लोकेशंस में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल और नेशनल कंपनीज के अंदर पोजीशंस अवेलेबल है विद इन इंडिया, और हमने ये चीज लाइव देखी है. सो अगर आप जॉब्स की बात करें, so jobs are available for ACCA professionals around the world, whether it's internship, whether it's a full-time employment which you're looking for, whether in China, America, South Africa, APAC, Middle East, Europe, India, wherever you are looking for. Some of the brands जो कि बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं ACCS के लिए इंडिया के अंदर, वो है सिप्ला, Oracle बहुत ज्यादा करता है, बिग फोर्स में KPMG, EY, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं. इंडियन कंपनीज में अगर आप बात करें तो ITC बहुत ज्यादा हायरिंग करती है, हैवलेट पैकर्ड, क्रेडिट स्विस, QX इंडियन कंपनी है, ग्रैंड थॉर्नटन भारत LLP बहुत ज्यादा हायरिंग करता है. इनफैक्ट उसने भी पोजीशंस निकाली थी, 30 दिसंबर को ही पोजीशंस आई थी ग्रैंड थॉर्नटन से. जॉब प्रोफाइल्स की अगर बात करूं तो ऑडिट सीनियर से लेकर के पार्टनर लेवल तक, CFO से लेकर के बिजनेस एनालिस्ट के लेवल तक, क्रेडिट कंट्रोल मैनेजर से लेकर फॉरेंसिक अकाउंटेंट तक, रिस्क मैनेजर, हर तरह की जॉब्स ACCA प्रोफेशनल्स के लिए इंडिया के अंदर आज की डेट में अवेलेबल है. सो नटशेल के अंदर अगर आप इस प्रोग्राम को परस्यू करते हैं तो आपका BCom इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एट ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी इज बीन एम्बेडेड बाय ACCA 9 papers. Once you complete the first 6 exempted, that means those papers which you don't have to appear for, and after that 3 papers which you have to appear for ACCA qualification. Once you finish them off, you are given advanced diploma from ACCA. You also are supported by ISDC by giving you a certificate, helping you to get the certificate IFRS from ACCA. Masters optional hai from University of London once you finish the ACCA qualification, and you also have an opportunity after getting your advanced diploma to go for BSc in Applied Accounting and Finance from Oxford Brookes University. So this is a complete package helping you to get the professional qualification, international masters, international graduation, domestic graduation, so on and so forth. So we have looked at all the aspects, 360-degree overview to help out the students by coming across with this combination. Now for the Q&A, we'll definitely have some time, but in case if anybody has any question, I mean, feel free to ask. Over to you, Vikas ji. So अभी प्रभांशु सर ने, जैसे मैंने आपको बताया, he has talked about the career portal of ACCA, and I also told you about the virtual career fair which is done by ACCA twice in a year, which is online on the job portal of ACCA. इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपसे जैसे डिस्कस किया, there are a lot of multinational companies which are listed here showing on the slide, or even Indian companies like ITC है, टेक महिंद्रा है, सिप्ला है, इन्फोसिस है. तो इन कंपनीज में भी ACCA प्रोफेशनल के लिए बहुत डिमांड है. जो बच्चा ACCA करता है उसकी इन ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं एट द मैनेजरियल लेवल. ISTC स्टूडेंट्स हर टेस्टिंग विंडो पे वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस मेरिट होल्डर्स, ग्लोबल रैंकर्स, वर्ल्ड रैंकर्स फॉर द ACCA एग्जामिनेशंस. आप देखेंगे वर्ल्ड रैंक 4, वर्ल्ड रैंक 12 in different subjects of ACCA जो एक्सटर्नल एग्जाम्स है जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑडिट एंड एश्योरेंस, जो 3 पेपर आप देंगे उनमें देखिए ISDC has been able to produce global rankers. Again there are some more global rankers here, world rankers हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं. Now talking about the fees which are applicable for ओम स्टर्लिंग स्टूडेंट्स, ACCA फीस, इनिशियल रजिस्ट्रेशन जो है, जो आप एट टाइम ऑफ एडमिशन देते हैं, इसका एक्चुअल फी कॉस्ट है 89 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. आपको सिर्फ देना है 20 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 2100 इंडियन रुपीज. ये आपको विद इन 1 month ऑफ क्लास कमेंसमेंट देना है. देन देयर इज एन एनुअल सब्सक्रिप्शन फी विच इज फॉर द मेंबरशिप ऑफ ACCA. फर्स्ट ईयर के लिए वेव्ड ऑफ होता है फॉर ओम स्टर्लिंग स्टूडेंट्स.
आपको नहीं देना है. 112 Great Britain pound first year membership is waived off. Second and third year you have to pay 112 in second year Great Britain pound and 112 Great Britain pound in year 3. 1 Great Britain pound is approximately Indian rupees 100. So 102, 112 as on date would be approximately 11,200 in second year, 11,200 in third year. First year, the 11,200 or 112 Great Britain pound is waived off. The examination fee for the 3 exams जो आप देंगे, ओनली जब भी आप जैसे आप ऑडिट एंड एश्योरेंस के पेपर के लिए बैठ रहे हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर के लिए बैठ रहे हैं, जिस पेपर के लिए आप यू विल सिट फॉर द एग्जाम, फॉर द एक्सटर्नल एग्जाम, उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 117 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, विच इज द कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड यू पे पेपर बाय पेपर एट टाइम ऑफ टेकिंग एग्जाम. जिस एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स मॉड्यूल की प्रभांशु सर बात कर रहे थे, विच यू कैन टेक आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड these 3 papers. It is an online exam. 20 hour का इसका स्टडी होता है ऑनलाइन. आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. इसका अप्रोक्सीमेट कॉस्ट है 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, which is 6,500 rupees as on date. We have no control over the ACCA fees and the currency rate fluctuations. ISDC का उस पर कंट्रोल नहीं है. इसके अलावा एवरीथिंग इज वेव्ड ऑफ. जैसे एग्जामिशन फीस, आपको 6 पेपर का एग्जामिशन मिल रहा है, that is waived off. You don't have to pay any exemption fees to ACCA. Actual cost is about 558 Great Britain pound. Then the soft copy of learning materials is also fees is waived off for you. You don't have to pay the 600 Great Britain pound. And the IFRS certification जिसकी हम आपसे बात कर रहे थे, that is also waived off for you. You can appear for that IFRS certification, International Financial Reporting Standard exams online. And that fee for it is also waived off. Students, the last date to register for the ACCA exams is 20th January 2021. And Mr. Nikhil Sharma, this is his contact number and his email ID. You can take a screenshot of this, and you can, if you have any queries, you can contact him. So thank you so much. Now we are open to questions.